بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. And he created the cattle for you as a source of warmth, food, and many other benefits. They are also pleasing to you when you bring them home and when you take them out to graze. And they carry your loads to distant lands, which you could not otherwise reach without great hardship. Surely your Lord is ever gracious, most merciful. Jazakallah. जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार सप्तैन ख़ान को खुश आमदीद कहते हैं। बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर सरदार सप्तैन ख़ान, स्पीकर पंजाब असम्बली। हफीज़ुर रहमान न्याज़ी साहब, वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तमाम लोगों से गुजारिश है एक दफ़ा भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें हमारे आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, सरदार सप्तैन ख़ान का, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। वंस अगेन सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो के लिए टाइम निकाला। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं सर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं सर, थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। इससे पहले हमने जो है वो कलाम कुरान पाक से जो है हॉल को मुस्तफ़ीद किया। आई वुड लाइक टू फॉर्मली वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो 2020। माय नेम इज़ डॉक्टर शहजाद नवीद जदून and I am today's your inaugural host, and I will take the lead of inaugural session, and it gives me immense pleasure to welcome our chief guest Sardar Shahabuddin, Minister Livestock Punjab, Sardar Saptain Khan, Speaker Punjab Assembly, and giving us this opportunity to be part of this inaugural session. So with the permission of the chair, we formally inaugurate the session of IPEX 2020. Thank you very much, Ji. Big round of applause for the inaugural of IPEX 2020. So, हमारे साथ हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। So, as I mentioned earlier,
This IPEX 2022 is unique because it has started after the pandemic COVID. So all the activities were halted because of that disease. And we are thankful to Pakistan Poultry Association that they have arranged this expo where more than 100,000 people are expected to visit, more than 300 companies has participated, more than 25 to 30 countries representations would be here on Expo Lahore. So I think it is a great platform to tell about the poultry industry, to tell about what we are doing locally and what are the opportunities that we can club together. So we are thankful to Pakistan Poultry Association where we are getting this opportunity where we can interact. Today, we have our foreign delegates, excellencies, honorable ministers, academicians, young students, poultry fraternities, who all has come all the way from Pakistan and across the Pakistan. So I must say, ji aaya nu, har kade, pakhair ragle, aur bhali kare aao. This is a warmly welcome to our foreign delegates and our dignitaries who are sitting on the stage and sitting in front of me. We are going to start the program and I would like to invite Dr. Asim Mahmood Khan Sahab to come and tell us about the Poultry Expo 2020, what we are doing and what are the things that are different from previous years. So big round of applause for Dr. Asim Khan, the chief organization of IPEX 2020. Thank you, Jadoon. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ स्पीकर पंजाब असम्बली, मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर लाइव स्टॉक, and I welcome designated ambassador Netherlands, मेरे बहुत प्यारे बड़े भाई जिनकी वजह से हमारा ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है, मोहतरम हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब, सेंट्रल चेयरमैन जनाब अब्दुल बासित साहब, डॉक्टर साबिर साहब, डॉक्टर सरोज साहब और मेरे मेहमानान गिरामी, आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। आज का हमारा ये शो इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री का एक बड़ा शो है, और मुझे ये कहने दीजिए कि पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की नंबर 2 इंडस्ट्री है, और आज का ये जो शो आप देखेंगे एक्सपो सेंटर के अंदर जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, तीनों हॉल के अंदर 200 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स और 40,000 से ज़्यादा डेली के विज़िटर जो हैं उनका टर्नओवर है, और बहुत सी एम्बेसीज जो हैं इसको वो डेली विज़िट कर रही हैं। इसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्री के लोग, हमारा जो बेस है, बुनियाद है, हमारा फार्मर, जो जान है पोल्ट्री इंडस्ट्री की, वो सब यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री जो कि यकीन रखती है कि फूड की जो कमी है उसको पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और इस ज़िम्मेदारी में वो शब रोज़ पोल्ट्री इंडस्ट्री सस्ती प्रोटीन, बेहतरीन प्रोटीन, आला क्वालिटी की प्रोटीन आपको मुहैया कर रही है। आप यकीन कीजिए, अगर ये आपके पास प्रोटीन ना हो तो आप ना तो बकरे का गोश्त खा सकते हैं, ना किसी बड़े जानवर का गोश्त आप ले सकते हैं, लाइव स्टॉक का, उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो जाएं। तो इसने साथ साथ जो आपकी ग्रेन्स की कॉस्ट है उसको भी इसने रोका हुआ है। आज हमारे पास हमारी जो डिग्निटीज़ हैं, हम अपने स्पीकर सप्तान खान साहब से कहेंगे,
सरदार शहाबुद्दीन साहब से कहेंगे, क्योंकि सरदार साहब इस कॉन्फ्रेंस के बीइंग मिनिस्टर लाइव स्टॉक सरप्रस्त भी हैं। ये इन्हीं का शो है, इन्हीं की वजह से ये शो हुआ है। सरदार साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए, और हम स्पीकर पंजाब असम्बली के बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें रौनक बख्शी और इस शो को 4 चांद लगा दिए। आज हमारे पास टाइम कम है, स्पीकर साहब ने जाना है। हम कोशिश करेंगे कि सारे हम अपनी जो स्पीच हैं वो उसका दौरानिया कम रखें। तो मैं आप सबका एक दफ़ा फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया जी। शहजाद जदून साहब, मेरा ख्याल आपने डाइस पे पहुंचना है ताकि हम अपने नेक्स्ट मेहमान को बुला सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिम महमूद खान साहब। जैसे कि हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हमारे जो चैलेंजेस हैं या जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम डिग्निटीज़ को प्रेजेंट करें और ऐसा वे फॉरवर्ड तलाश करें कि जहाँ पे हम मिल के कोलैबोरेशंस पे काम कर सकें। क्योंकि जब तक हम हेल्दी फूड के ऊपर काम नहीं करेंगे, हेल्दी नेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मैल न्यूट्रिशन की जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आसिम साहब फॉर अरेंजिंग दिस शो। सो I would like to proceed further, and I would request to Dr. Abdul Kareem, Chairman Pakistan Poultry Association, to tell us about where we are today in poultry industry of Pakistan. A big round of applause for Dr. Abdul Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Ministers, Speaker, Punjab Assembly, Your Excellency, my dear colleagues, आज सरदार साहब मैं फोकस्ड बात करूँगा कि पोल्ट्री के क्या इसकी अफादियत है, क्या इसके मसाइल हैं और क्या उसका हल है। पोल्ट्री के अफादियत, मसाइल, हल वही हैं जो पूरी फूड इंडस्ट्री के हैं। प्राइमरी फूड है जिसमें अनाज आ जाता है, दालें और उसमें ऑयल सीड आ जाते हैं, अंडा, दूध, गोश्त आ जाता है, सब्जियां आ जाती हैं और फ्रूट्स आ जाते हैं। ये प्राइमरी फूड्स हैं और इन सब के मसाइल एक किस्म के एक तरह के हैं। पोल्ट्री का अगर हम देखें तो एक सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए सबसे पहले पोल्ट्री आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, जो कि ह्यूमन नहीं इस्तेमाल कर सकते, कन्वर्ट करती है उसको अंडे और गोश्त में। इससे उन सब की वाइबिलिटी बनती है और एक बड़ी यूज़फुल हाई प्रोटीन फूड जो है पाकिस्तान में अवेलेबल होता है। और पोल्ट्री पाकिस्तान में सेल्फ सफिशिएंट है, शॉर्ट नहीं है। पोल्ट्री जितनी डिमांड होगी उतनी पैदा हो जाएगी। इसकी ये खसूसियत है कि ये नहीं होगा कि डिमांड बढ़ गई तो ये शॉर्ट हो जाएगी, नहीं, जितनी डिमांड बढ़ेगी उसको मैचिंग प्रोडक्शन इसकी विद इन 6-9 मंथ्स आ जाती है। दूसरी बात यह है कि पोल्ट्री पूरे पाकिस्तान में गांव के लेवल पे जॉब देती है, गांव में जॉब देती है। ये शहर से लेके गांव तक जॉब देती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट को यूज़ करती है, कंस्ट्रक्शन को यूज़ करती है, होटलिंग इंडस्ट्री को ये सपोर्ट करती है। सो एक किस्म का पोल्ट्री का हमारी इकॉनमी में एक बड़ा पिवटल रोल है, एक सेंट्रल रोल है। और ये कमोडिटीज़ की प्राइस रेगुलेटर भी है। दूसरे गोश्त की कीमत, दालों की कीमत और किसी हद तक सब्जियों की कीमत पे भी ये पोल्ट्री की कीमत असरअंदाज होती है। पोल्ट्री बिकॉज ऑफ इस प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी, हर साल इसमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट आती है, तो ये
इसमें ये एक ख़ास खसूसियत है कि ये इसकी कीमत एतदाल में रहती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एतदाल में रहती है। अब इसके अलावा एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है हमारे नज़दीक 400 बिलियन डॉलर का, जो हलाल फूड इंडस्ट्री का है, हम उनके साथ बिल्कुल नेबरहुड में हैं। अगर इस पोल्ट्री को हम इस काबिल बनाएं तो हम उसका 10% शेयर छोड़ें, 1% शेयर भी ले लें तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला जाता है। हमें इसको इस काबिल बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, पाकिस्तान में 44% बच्चे मेल नरिशमेंट और स्टंटिंग का शिकार है। ये रिपोर्ट है, बड़ी अफसोसनाक सी खबर है। लेकिन पोल्ट्री को अगर स्पॉन्सर किया जाए तो हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पोल्ट्री इसलिए पूरी कर सकती है कि इससे कम कीमत पे प्रोटीन या फैट अवेलेबल नहीं है। जो कमी होती है खुराक की, वो प्रोटीन और फैट की होती है। और पोल्ट्री में ये खसूसियत है कि इसकी जो प्रोटीन और फैट है किसी हद तक दालों से भी सस्ती है। और दालों के बारे में हमें याद रखना चाहिए कि ये इंपोर्ट होती हैं, सोए चने की दाल या मूंग थोड़ी सी, बाकी इंपोर्ट होती हैं। तो ये 5 से 15 साल के बच्चे के लिए अगर स्कूल लंच प्रोग्राम में, जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, अगर ये लंच प्रोग्राम चलाया जाए तो पाकिस्तान में शायद आंदा 8-10 साल में स्टंटिंग और मैल नरिशमेंट ख़त्म हो जाएगी। और हमने बड़ा अंदाज़ा लगाया था कि ये 10 साल की पीरियड में एक बच्चे के ऊपर $1000 खर्च आता है। $1000 में अल्लाह रहम करे कोई काम नहीं होता। 10 साल में उस बच्चे को सिर्फ आपने, और ये एक किस्म की इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर है। इसके अलावा ये तो पोल्ट्री के एक बेनिफिट थे कि एक्सपोर्टेबल है, जॉब्स देती है, और उसके बाद एक यूज़फुल प्रोडक्ट दे रही है आपको। और स्टंटिंग के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। वो कहते हैं जी कि ये बच्चे शायद बड़े होके अपना पोटेंशियल के मुताबिक ये उसको इस्तेमाल ना कर सकें। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसका वही है जो किसी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का है। प्रॉब्लम इसका है कि इसकी लागत बढ़ गई है, और वो लागत रिकवर नहीं होती जब फार्मर को जो कीमत मिलती है। मसला ये आ गया है कि जब जो ख़रीदार है उसकी पॉकेट का साइज़ छोटा है, वो समझता है कि ये बहुत महंगी है, उसकी पॉकेट के साइज़ से वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो कीमत प्रोड्यूसर जो है ना उसके लिए भी सूटेबल नहीं है। वो कहता है इस कीमत में पैदा नहीं कर सकता मैं। अब इसका हल क्या है? और ये सारी एग्रीकल्चर की स्टोरी यही है। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनका, खान साहब, उनका तकरीबन कोई काफ़ी सारा कंपोनेंट इंपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल्स जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होते। केमिकल्स हैं, इसका ब्रीडिंग स्टॉक है पोल्ट्री का, या जैसा मकई है तो उसका बीज आ रहा है बाहर से, फर्टिलाइज़र आ रहे हैं बाहर से। और पोल्ट्री में तो तकरीबन 60% कंपोनेंट इंपोर्ट होता है। उसमें बहुत बड़ी इंपोर्ट ऑयल सीड्स की भी है, जो कि तेल ह्यूमन में चला जाता है और मील जानवरों में चला जाता है। अब असल मसला सरदार साहब पता है क्या है? 2012 के बाद हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट जो फूड प्रोडक्शन में होते हैं उनके ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी और सेल्स टैक्स लगा दिया है। उसूल ये है कि रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स लगाना मतलब आप सिर्फ खर्चा बढ़ा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वक्त हालत ये हो गई है कि रिसेंटली तकरीबन कोई जो 17% सेल्स टैक्स भी लग गया, तो इस वक्त 30 से 35% रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं, जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होते और फूड सेक्टर की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, उन सब के ऊपर टैक्स लग चुका है और वो लागत का हिस्सा बन गया। अगर हम इसको कम करेंगे, ठीक है, वो एक फाइनेंस के हिसाब से पैसे आने तो कम हो जाएंगे, लेकिन आपकी ये सारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो जाएगी। दो फ़ायदे होते हैं। एक कि आपकी लोकल पॉपुलेशन को एक रिलीफ मिलता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फ्लेशन है वो फूड इन्फ्लेशन है।
कार जितनी मर्जी महंगी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जो है ना वो कंट्रीज़ ने कंट्रोल की है। इवन सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क ने भी फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल की है, चाहे जो मर्जी करें उसके साथ। तो ये अगर हम इस वक्त विद द स्ट्रोक ऑफ पेन ये सेल्स टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल इंपोर्ट ख़त्म कर देना, तो मेरा ख्याल है कि आपका 25 से 30% फूड की लागत कम हो जाएगी इन एवरी सेक्टर। इसलिए मैंने कहा था मैं फोकस्ड बात करूंगा। मसाइल बहुत होते हैं, वो हल, लेकिन ये ऐसा मसला है जो कि पीरियड के साथ साथ बढ़ता गया है। पहले 10% टैक्स लगा, फिर 15 हो गया, फिर 7% सेल्स टैक्स लगा, फिर 17 हो गया, ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि फूड प्रोडक्शन को, बल्कि प्राइमरी फूड प्रोडक्शन को, जो मैंने 4-5-7 चीज़ें बताई हैं, प्राइमरी फूड प्रोडक्शन को इन इनपुट के बर्डन से हमें आज़ाद करना पड़ेगा अगर हमने लोगों को रिलीफ देना है और एक्सपोर्ट करना है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर करीम साहब। आई गेस आपने जितने भी पॉइंट उठाए वो बड़े रेलेवेंट हैं, क्योंकि जब हम पोल्ट्री इंडस्ट्री को देखते हैं या इसकी इनपुट्स को देखते हैं या जो इसको तैयार करने के अंदर जो अजनास या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनका बड़ा कलीदी रोल है परफॉर्मेंस पे और कॉस्ट के ऊपर। तो मेरा ख्याल है जो भी सर ने सजेशंस दिए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करेंगे तो इनफैक्ट हम जो यहाँ इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनकी खुराक पे काम करेंगे, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द फूड सिक्योरिटी। सो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Mr. Paul Edrer, Commercial Counselor, on behalf of Ambassador Mrs. Hanny, Ambassador Designate, to come and present. So, Mr. Paul Edrer, thank you very much for joining us. Good afternoon, honorable chief guests, organizers. Indeed, let me start with explaining our Ambassador Designate, Henny de Vries, is sitting there, but she's presenting her credentials 3rd of October, so until that time I'll be taking care of the speeches. Let me start also with something that I did not write down in a speech, but I'm very happily surprised with the gender balance in the audience. It's a very good sign, I think. Yeah, that's definitely a word and applause. The relationship between the Kingdom of the Netherlands and the Islamic Republic of Pakistan dates back a long way. It dates back all the way to the 17th century when the Netherlands had a trading post in the province of Sindh. Nowadays, it's almost 2023, and we will be celebrating our 75th year's anniversary next year. One of the main pillars of our bilateral relation is trade and investments. So allow me to share some figures to illustrate this. According to the State Bank of Pakistan, the total foreign direct investments of the Netherlands in 2022 was $305 million US dollars. That makes us one of the top 5 investors in Pakistan. Just to give you some examples, you might know the brand Olpers. That's one of the big Dutch investments in Pakistan of Fries and Campina, together with Angry Fruits. But there's also others like Spar, Frisian Eggs. Although we are very important trade partners already, we see great potential to increase this. We like to broaden our economic relations along the lines of government to government, business to business, but also knowledge to knowledge. And I know there's a lot of university students sitting here in the audience today as well. The economic diplomacy of the Netherlands is targeting 3 sectors in Pakistan: agriculture, maritime industry, and water management. Today, of course, all is about agriculture. Both of our countries share the importance of the agricultural sector for our economies. As you know, the Netherlands is an international leader in the field of agriculture, dairy, and poultry. Netherlands is a country of old traditions and solid foundations in the production of milk, sustainable livestock, and high-class poultry products. To give you an example, the Netherlands is the world's largest exporter of eggs for consumption and egg products, and we're the 3rd largest exporter of chicken meat. We see a lot more opportunity for poultry companies from the Netherlands and Pakistan. Therefore, the Embassy of the Netherlands is here today with a Dutch pavilion where 7 Dutch companies are represented. I would like to invite you all to visit this pavilion in Hall 3. You will recognize the pavilion by its orange color. And we have 7 companies represented there, which is Hato Lightning, Venco Medic Group, Troll Nutrition, I Grow Chicken,
you can recognize the guy with the beautiful suit with chickens on it. Aminoric Nutritions, Signify, and Main Food Processing. Finally, and I'm keeping it very short, I would like to reaffirm our commitment towards building a prosperous economic relationship between our two countries. We as an embassy are open for business. We have a great team in the economic department who are always ready to help and guide you in the relevant areas of trade and investments. I am sure this expo will lead to a lot of Netherlands-Pakistan cooperation in the poultry sector, and I'd like to thank you for your attention. Thank you, Mr. Paul, and बहुत shukriya for joining this Expo, International Poultry Expo 2022. So, guys, we are running short of time, but we have a very beautiful people around. So we have a very beautiful people around, so I don't want to miss this opportunity, and I would like to take this opportunity to invite Hafizullah Khan Niazi साहब. सर आप आएँ, कुछ शब्द हमें बताएं और कुछ शब्द बोलें. बहुत ज़्यादा तालियां हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इंतहाई काबिल एहतराम स्पीकर पंजाब असम्बली साहब, मोअज़्ज़ज़ वज़ीर लाइफ स्टॉक, सारे मुअज़्ज़ज़ीन स्टेज पे, सारे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा ख़्याल है ये जो हमने कट किया है बड़ी खूबसूरत बातें हुई हैं. और आज चूँकि हमारे दुल्हा जो हैं वो मेरे अपने भाई सरदार सप्तान खान साहब हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली, और उन्होंने अभी भी बड़ी अच्छी पुरमगज़ बातें की हैं. मज़ीद फरमाएँगे. बस मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ ऐड करता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, एक हर चीज़ में शॉर्टेज है, फूड इनसिक्योरिटी, ख़ुसूसन गोश्त के अंदर. और अभी सप्तान खान साहब ने बाहर भी प्रेस को ये बताया है कि एक चीज़ है जो अचीवेबल है और वो बाकी चीज़ों की रिप्लेसमेंट हो सकती है. मटन है, बीफ है, जितने बाकी प्रोटीन जो है यहाँ से आती है. तो मेरा ख्याल है कि पोल्ट्री बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि यू आर डूइंग सर्विस टू द नेशन. ये कोई छोटा काम नहीं है, और आप इसको जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं. और एक बात उन्होंने कही थी कि जी हमारे यहाँ जैसे कुछ चीज़ बढ़ती है ना, तो फिर हम उसको इस तरीके कंट्रोल करते हैं. सरदार साहब ने एक तरीके से वही बात की, मैं भी वही कहूँगा कि वो देखते हैं कि अगर शुगर वाले, आटे वाले, जो भी है हमारी क्वान्टिटीज़ की, कि इसलिए कीमत जब देखते हैं कि घट रही है तो वो फिर एक पैदा हो जाती है उसके अंदर कमी. तो मेरा ख्याल है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जितने ये मुझे यंग एस्पायरेंट्स सामने बैठे हैं, मैं यही कह सकता हूँ कि ये कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे पूरी इंडस्ट्री के अंदर. बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का, इस जो है इतनी इज़्ज़त देने का. बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. हमारे लिए बहुत ऑनर है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब हमारी महफिलों में आएंगे तो हम आपसे बहुत सी चीज़ें सीखेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का. सो नाउ वी प्रोसीड फर्दर. आई वुड लाइक टू इनवाइट, जो कि हमारी इस वक्त इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा जिनका कुर्बत भी है, ताल्लुक़ भी है, सरदार शहाबुद्दीन खान साहब, मिनिस्टर लाइफ स्टॉक पंजाब. सर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें. बहुत सी तालियां सरदार शहाबुद्दीन खान साहब के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. Excellency, Ambassador of Kingdom of Netherlands, Honorable Speaker Punjab Assembly, Khan Siptain Khan Sahab, Khan Hafizullah Khan Niazi Sahab, Senior Journalist, Dr. Rana Sajad Sahab, Chairman Pakistan Poultry Association, Dr. Abdul Karim Sahab, Vice Chairman, Dr. Asim Mahmood Khan Sahab, Dr. Basit Sahab,
सरकारी व गैर सरकारी इदारों के सरबराहान, अस्सलाम वालेकुम। या मुल्क भर से ज़राई वेटरनरी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा इकराम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेंबरान, अमेरिका, यूरोप, चाइना, एशिया, मशरक़ वस्ती व दीगर ममालिक से शिरकत करने वाले गैर मंदोबीन और कसीर तादाद में मुल्क के तूलो अर्ज़ पर तशरीफ़ लाने वाले शुरका, इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो 2022, मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो 2022 की इफ्तिताई तकरीब में मदऊ करने पर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और इस आलमी पोल्ट्री कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन का इंतहाई मशकूर हूँ, जिनकी बदौलत आज की इस बावकार तकरीब के शुरका से मुझे बात करने का मौका फ़राहम हुआ। मोहतरम ख़वातीन, उम्र के 44% बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, जो दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन शरह है। पाकिस्तान में इसकी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए जानवरों की प्रोटीन खाने की कमी की वजह से सेहत को शदीद खतरात लाक हैं, जिनमें ज़हनी पसमानदगी, नौज़ायदा बच्चों में शरह अमवात, 12% बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुफ़ादियत के शदीद ख़तरात लाहिक हैं। ये बात हौसला अफजा है कि हमारा पोल्ट्री सेक्टर इस खला को पूरा कर रहा है। पोल्ट्री सेक्टर पाकिस्तान की ज़राअत इंडस्ट्री के मुनज़्ज़म तबक़ात में से एक है। इस शोबा में सालाना 7-10% ज़बरदस्त तरक्की हो रही है, जो इसकी मौरूसी सलाहियत की अक्कासी करती है। मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत में इसके मुमकिन किरदार की निशानदही करती है। इंसानी आबादी के लिए मुतवाज़िन खुराक की पैदावार में 15 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया हो रहा है। इसकी शराकत नुमायाँ है। पंजाब पाकिस्तान पोल्ट्री की पैदावार में तकरीबन 73% हिस्सा डाल रहा है। लिहाजा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब पोल्ट्री सेक्टर में मौजूदा तरक्की की शरह को न सिर्फ बरकरार रखने के लिए निजी पोल्ट्री सेक्टर की हिमायत कर रहा है, बल्कि इसमें जानवरों की प्रोटीन, फूड की तैयारी, खुद कफ़ालत और खुद इन्हिसारी से चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए भी तरक्की कर रहा है। मैं आज ये चीज़ बावर कराना चाहूँगा कि जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ज़राअत से मुंसलिक तमाम सेक्टर्स बशमूल पोल्ट्री सेक्टर की तरवीज व तरक्की के लिए पुरअज़म है। इस सिलसिला में एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ़ इक़दामात की मंजूरी दी गई है, ताकि मुल्क में ज़राई पैदावार के इजाफ़े से ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुल्क में गुर्बत का ख़ात्मा हो सके और मुआशी मैदान में ज़राई इस्लाहत के लिए बेहतरी लाई जा सके। मेरे लिए ये अमर इंतहाई मुसरत का बायस है कि सूबा पंजाब में साजगार कारोबारी माहौल की बदौलत पोल्ट्री सेक्टर में तकरीबन 73% सरमायाकारी की गई है। मौजूदा हुकूमत मुर्ग़बानी के तमाम मसाइल को हल करने के लिए बाहमी मशावरत के असूल पर अमल पैरा है, ताकि जदीद तहकीक, बेहतरीन तोसी खिदमात, तिब्बी सहूलियात और मौसर कानून साजी से पोल्ट्री सेक्टर को
मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके और पोल्ट्री के ज़रिए मुल्क की हैवानाती प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए साथ साथ पोल्ट्री मसनूआत की बरामदात को भी बढ़ाया जा सके, जिससे मुल्क की मईशत में बेहतरी और इस्तेकाम लाया जा सके। ये अमर बायस इत्मीनान है कि एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होने वाली मौजूदा इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो फार्म के मसाइल को हल करने में मुआवन साबित होगी। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्की व गैर मुल्की साइंसदान और माहिरीन पोल्ट्री फार्मर्स के मसाइल को हल करने के लिए अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस पोल्ट्री फार्मर्स को दुनिया भर में पोल्ट्री से मुतल्लिक़ा जदीद अलूम से बहरावर होने का मुनासिब मौका मुहैया करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में पोल्ट्री फार्मर्स को दरपेश रोज़मर्रा के मसाइल के हल के लिए जदीद खतूत पर रहनुमाई मिलेगी, ताकि वो कम पैदावारी लागत में हिफ़्ज़ान सेहत के तमाम असूलों के मुताबिक बेहतरीन गोश्त और अंडे सार्फिन को मुहैया करेंगे। मेरा ये ज़ाती तौर पर ये ख्वाहिश होगी कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का आगाज़ हो पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सरदार शहाबुद्दीन खान साहब, मिनिस्टर लाइफ स्टॉक पंजाब। जितने भी आपने अदाद शुमार बताए वो एक खुली हकीकत है, और हमें ये बात सुन के बड़ी खुशी हुई कि ये गवर्नमेंट और आपकी लीडरशिप पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सीरियस है। और हम समझते हैं कि अगर ये इक़दामात हम लेंगे तो आने वाले टाइम में ना सिर्फ हम अपनी मुल्की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, बल्कि अपने जो पेरिफेरीज कंट्री हैं वहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वी बिलीव इन इट। सो इफ़ वी कैन कनेक्ट फील्ड, फार्म, फीड एंड फूड टुगेदर, दैट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। बहुत बहुत शुक्रिया सर के लिए, बहुत ज़्यादा क्लैपिंग जी। So we have announcement that Mrs. Hani, the ambassador designate, she has to leave. Ma'am, thank you very much for joining us and gracing this event. Once again, thanks for joining us. Thanks ma'am, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले की तरफ जाते हैं। आज हम लकी हैं कि हमारे साथ जो शेर मियाँ वाली मौजूद हैं, जो कि एक मेरी बड़ी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। ऑनरेबल मिस्टर स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सब्तैन खान साहब, चीफ गेस्ट इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो 2022। बहुत ज़्यादा क्लैपिंग सरदार सब्तैन खान साहब के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे बहुत ही ऑनरेबल मिनिस्टर सरदार शहाबुद्दीन खान साहब, मैडम मिसेस हैनी डेजिग्नेटेड एम्बेसडर जो थी हॉलैंड की, ऑल्दो शी हैज़ लेफ्ट, बट आई वांट टू मेंशन हर नेम टू बिकॉज शी वॉज सिटिंग हेयर। इसके अलावा आपके जो 22nd इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो है, उसके चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल करीम और डॉक्टर अब्दुल करीम साहब और उनकी टीम, इसके अलावा आपके डॉक्टर सज्जाद साहब, डॉक्टर आसिम महमूद साहब, मोहतरम सलमान मुनीर साहब, इसके अलावा हफीज़ुल्लाह खान साहब जो हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं।
इसके अलावा आप सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। I will just take 3 to 4 minute of yours। सिंपल सी बात है कि आज हमने पोल्ट्री को डिस्कस करना है और इसकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करनी है, क्योंकि जिस तरह सीनियर जर्नलिस्ट भी आए बैठे हैं और आपके मिनिस्टर कंसर्न्ड भी आए बैठे हैं, तो आई वुड लाइक कि मैं भी अपना व्यू पॉइंट उसमें दे दूं। मसला ये है कि हमारी यहाँ जो मुझे फील हो रहा है कि हमारी डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आ रहा है। हमारा पोल्ट्री का जो इनपुट्स हैं वो एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गई हैं, जो कि हम जबकि उसके लिहाज से पोल्ट्री को हम आम शहरी की रीच में रखना चाहते हैं और ये गवर्नमेंट का हक है कि वो रखे भी सही। वो उनके जो बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, उसकी वजह से पोल्ट्री का जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। देखें, इस वक्त जो पोल्ट्री है ये हमारी एक किस्म की, मैंने बाहर अभी मीडिया में भी कहा कि हमारी ये नेशनल बर्ड बन चुकी है कि किसी के घरों में अल्लाह सबको आप लोगों को खुशियाँ दे, चाहे खुशी हो या खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड कहीं गम हो, चिकन का होना हर लिहाज में ज़रूरी है। इट इज़ मस्ट, वो हर तरह से इस्तेमाल होता है। तो जब आम शहरी की रीच या रेंज से वो बाहर निकल जाएगा तो नेचुरली वो हर किसी के लिए मुश्किलात बनेंगी। और ये सबसे, और इसके अलावा बढ़ के अब आप देखें कि फ़िश की कीमतें कहाँ चल रही हैं, मटन कहाँ चल रहा है, बीफ कहाँ चल रहा है। इसमें आपको वो पूरी मिनरल्स भी मिलती हैं। फिर सिर्फ पोल्ट्री तो नहीं है ना, पोल्ट्री के साथ आपके एग्स भी लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और आपको वो जो इंस्टेंट एनर्जी है आपको वो भी मिलती है उसमें। तो ये मतलब अनअवॉइडेबल हो गया है। तो हमने जो भी इनकी मुश्किलात हैं, मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसीली आपके साथ गुफ्तगू की है। हमें इसकी इम्पोर्टेंस का एहसास है। आंखें बंद बिल्कुल नहीं है हमारे। अब आप ये देखें कि पिछले 2019 और 2020 में कोविड का पूरी दुनिया के हालात देखें, लेकिन आपके उस वक्त के वज़ीर आज़म की जो पॉलिसीज़ थी, जनाब इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, आपके उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ थी, आप ये देखें कि वी हैड सेव्ड आवर कंट्री। इतनी वर्स क्राइसिस के बावजूद उसमें जब चेयरमैन कहीं से मैसेजेस आते थे कि जी लॉकडाउन कर दें, तो मेरे तो आज भी वही वज़ीर आज़म हैं, तो मेरे शुक्रिया, थैंक यू जी। मेरे वज़ीर आज़म ये कहते थे उस वक्त कि अगर हम ये सब कुछ यूं कर देंगे तो जो गरीब डेली दिहाड़ी वाला है, मजदूरी वाला है, रिक्शा चलाता है, रेहड़ी चलाता है, वो कहाँ जाएगा। तो उन्होंने एक इतनी सारे हालात को देख के एक इतनी पॉलिसी अच्छी दी कि आज अल्लाह का करम है कि कोविड से भी निकल गए और इकोनॉमी भी जब तक वो रहे संभाल के चलते आए। अब प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि देखें ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड। अब जब पेट्रोल, डीजल, बिजली ऊपर से ये चीज़ें बढ़ेंगी तो इसके डाउन पोरिंग इफेक्ट्स भी आते हैं प्रोविंसेस में। बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पोल्ट्री बिजनेस ऑल्सो, जहाँ बहुत और सारी बातें हैं।
दिस इज समथिंग वेरी वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वॉट एवर वी कैन डू, वॉट एवर इट इज़ पॉसिबल विद अस, वॉट एवर इट्स पॉसिबल विद योर गवर्नमेंट ऑफ PTI, वी विल डू इट एंड इट्स अ कमिटमेंट। इट्स अ कमिटमेंट। थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह मुझे एक चीज़ याद आ गई है। देखें, मैं बेसिकली तो आई एम अ पॉलिटिकल फिगर ना, तो मैं छोटी सी बात एक करता होता हूँ हर जगह पे, जो आज आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड इट कि चलो यहाँ ना करें, बट नाउ आई थिंक आई विल डू इट। वो बात ये है कि मैं कई जगह पे कहता हूँ कि निज़ाम कुदरत है, ठीक हो गया, नो कॉन्फिडेंस हो गया, उतर गए PM साहब, मेरे PM और आपके PM उतर गए, लेकिन आखिर में मैं ये कहूँगा कि मैन प्रोपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। कुर्सी से उतार दिया, लेकिन अल्लाह पाक ने आप लोगों के दिलों में डाल दिया, वहां से कौन निकालेगा? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सप्तान खान साहब, ऑनरेबल स्पीकर पंजाब असम्बली। सर, आपने महफिल के अंदर जान डाल दी। ये बच्चे जो इतनी देर से जो है वो खामोश बैठे थे, वो आपके प्राइम मिनिस्टर और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर का नाम सुन के कितने खुश हुए। तो एक दफ़ा बहुत सी क्लैपिंग सरदार खान। हमें ये चीज़ बड़ी बाखूबी उसका इल्म है कि डायरेक्शन जो है वो स्पीड से बेहतर है। अगर डायरेक्शन ठीक हो तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और हमें इस चीज़ पे भी पूरा यकीन है कि बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं जो चीज़ों को बेहतर जानती हैं और बेहतर कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी प्रेजेंटेशन का, आपके आने का। जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी शो के आखिर में एक रिवायत है, एक रीत है कि हम उन तमाम लोगों को रिकग्नाइज करते हैं, उन तमाम लोगों को एक्नॉलेज करते हैं जिन्होंने अपने दिन रात एसोसिएशन के लिए, पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए दिए होते हैं। तो आज उन्हीं लोगों को हम स्टेज पे बुलाकर जो है वो एक लव ऑफ टोकन शील्ड देंगे, ताकि ये उनके पास एक यादगार लम्हे के तौर पे रहे कि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए, मुल्क के लिए बेहतर किया, और उनको उनके चाहने वाले लोगों ने जो है वो रिकग्नाइज किया, वो एक्नॉलेज किया। इस प्रोग्राम के सिलसिले को कंटिन्यू करने के लिए मैं तमाम अपने डिग्निटरीज़ को रिक्वेस्ट करूंगा कि सामने आप स्टेज के सामने आ जाएं, ताकि हम उन तमाम लोगों का नाम लेके बुलाएं और वो आएँ और अपनी अपनी शील्डें वसूल करें। बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो है वो इन्वॉल्वमेंट उसकी ज़रूरत है। तो वंस अगेन अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर एवरीवन। आज हम लकी हैं कि एक ही छत के नीचे बहुत सी डिग्निटरीज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके एक्सपीरियंस, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के तजुर्बात से हमने बहुत कुछ सीखा और सीखते रहेंगे। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल स्पीकर मिस्टर सप्तान खान साहब के वो अपनी शील्ड वसूल करें। मैं चेयरमैन और जो एक्सपो सेंटर के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इनको शील्ड प्रेजेंट करें। आपकी भरपूर तालियों में सरदार सप्तान खान, स्पीकर पंजाब असेंबली। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्टर लाइफ स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन खान साहब कि वो अपनी शील्ड वसूल करें।
डॉक्टर साबिर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो उनको शील्ड प्रेजेंट करें जी, आपकी भरपूर तालियों में जी। So we don't have our Honorable Excellence Ambassador Designate Miss Henny, but we have a shield for her. So all those who are sitting on behalf of her, they can collect later on. Sure. Okay, we will give them in the evening. So now I would like to take the name of the people. If they are around in the hall, they are requested to come and take their shields. So may I request Abdul Basit Saab, please collect your shield. Speaker Saab, kindly grace this occasion to hand over the shield to Mr. Basit Saab. Dr. Abdul Kareem Saab. Dr. Abdul Kareem Saab. डॉक्टर आसिम महमूद खान साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब के लिए भी एक शील्ड है हमारे पास। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको भी शील्ड प्रेजेंट की जाए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट और आपका जोश और जज्बा इनके लिए शील्ड से ज्यादा बड़ी रिकग्निशन है, तो एक दफा भरपूर तालियां। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, आसिम महमूद खान साहब, a big round of applause for आसिम महमूद खान साहब। चौधरी अब्दुल मजीद साहब अगर मौजूद हैं तो काइंडली अपनी शील्ड वसूल करें। तालियों का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए भाइयों। मिस्टर शफीक अहमद फयाज साहब, डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर साहब, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर अकरम मुनीर साहब को, जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करे। आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर डॉक्टर अकरम मुनीर साहब। शायद डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, मिस्टर शाहिद रजा साहब, मिस्टर उमर तारिक, डॉक्टर हसन सरोज साहब, गुलाम फारूक साहब, मिस्टर फहाद वसीम, डॉक्टर फरहान अहमद, डॉक्टर हसन सरोज साहब। Big round of applause for Dr. Hassan Saroj Sahib. Professor Dr. Akram Munir, Lifetime Achievement Award. सर हम आपके बहुत मशकूर हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सेहतमंद रखे। डॉक्टर हाफिज राना सज्जाद साहब, मुबीन साहब, डॉक्टर हनीफ नज़ीर चौधरी साहब, so may I request Kevin Ropke to join and get the shield, please. Deepa, please join us to collect your shield. A big round of applause, guys. Dr. Hanif Nazir Saab, Dr. Muhammad Umar Saab, Dr. Masood Sadiq Chaudhary Saab, Dr. Masood Sadiq Chaudhary Saab, Miss Deeba, Dr. Masood Sadiq Saab,
Dr. Masood Sadiq Saab, Mr. Kevin. Mr. Kevin, big round of applause for our foreign dignitaries. Professionals, this is your show. Just make it happen by putting in your claps. Dr. Saifur Rahman Saab. Shahid Raza Saab. थैंक यू वेरी मच सर। तमाम मोजेज मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इसके बाद तमाम मोजेज मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे हॉल के अंदर। थैंक यू सर। इंशाल्लाह मुलाकात। थैंक यू सर। नाइस मीटिंग सर। आपसे यकीन करें कि आप लोग तो हमारी बड़ी जान है। थैंक यू वेरी मच गाइस। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, लोगों से इंटरेक्ट करें और आप जैसे यंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।